I welcome you in the fifth video in the series of online classes. Dear students, this is our fifth video. So far we have covered two topics in four separate videos. In the first two videos we tried to understand how to read and write the numbers in Indian system, and in third and fourth video we tried to understand how to read and write the numbers in international system. And this is our fifth video, and in this video we will be talking about the expanded form or the expanded notation of a number. Dear students, if you see your last year question paper, or when I was analyzing your last year question paper, I came across the expanded form, or in short form they are asking the frequent question for the 1 marks. So this is very simple topic as far as your understanding is concerned. So today we are going to learn about the expanded form only, and then in next video we will learn about the short form. Dear students, recently NCERT has released your alternative academic calendar. You know, your textbooks is so lengthy that we cannot complete our textbook through the distance or the online mode, because you are not coming to the school and we are not coming to your home. So this is our there is no face to face interaction of your and our. So the NCERT has released new academic calendar, and the same academic calendar I have shared with you in our WhatsApp group. As per the academic calendar, alternative academic calendar, they have given this topic expanded form and the short form of the number. So whatever topic we are covering, these topics entirely based on the alternative academic calendar released by the NCERT. Dear student, I would like to tell you, in case whenever your examination take place in future, the your question paper will be based on your alternative academic calendar, not from the textbook. So I request you kindly go through the alternative academic calendar, and whosoever teaching to you, जो भी आपको पढ़ा रहा है उनको आप अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर रेफर करने के लिए बोलिए, और उनको रिक्वेस्ट करिए कि व्हाट एवर दे आर टीचिंग टू यू, दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव कैलेंडर, alternative academic calendar. Okay, so this is our fifth video and we are going to start our topic. Now this is, in this topic we are talking about the expanded form. Expanded form. Expanded form of the number. Expanded form of the number. Before actually trying to solve the question, we first know what is meaning by expanded. What it mean by expanded? You might have heard about the concept of expanding universe. You might have heard. Otherwise, you will learn in detail in your class 8 or 9 the expansion of universe. Expansion or the expand mean increase in the size. सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप बलून, जिसको आप गुब्बारा कहते हो, वो जब मार्केट से लाते हो छोटा सा होता है ना, और जैसे जैसे उसके अंदर हवा जाती है, चाहे आप मशीन से मारो या मुंह से मारो, जैसे जैसे आप उसमें हवा डालते हो वैसे उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इजंट इट? तो जब छोटी चीज आपको छोटी चीज है और जैसे वो इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे एक्सपैंड होना. उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपैंड होना. नाउ आप देख सकते हो मेरे पास ये डस्टर है, दिस इज डस्टर. अब ये डस्टर आपको छोटा सा दिख रहा है ना, ये देखो ये डस्टर आपको छोटा सा दिख रहा है. अब ये देखो कैसे एक्सपैंड हो जाता है. आप इसको देखोगे तो ये देखो एक्सपैंड हो गया, बड़ा हो गया. पहले ये छोटा सा था, अब ये बड़ा हो गया. तो इसको ही बोला जाता है एक्सपैंड होना. जब छोटी सी चीज बड़ी हो जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सपैंड होना. अब आपको दूसरा एक सवाल आ रहा होगा कि सर
ये तो आपकी बात सही है कि एक्सपैंड होना मतलब बड़ा होना। अब नंबर कैसे बड़े हो पाएंगे? द नंबर्स आर द नॉन लिविंग थिंग एंड यू नो नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट बी इंक्रीज इन हाइट, दे कैन नॉट बी मूव, देन हाउ इट इज पॉसिबल द नंबर्स कैन बी एक्सपैंड? अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक्सपैंड हो जाए? तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उसके थ्रू हम ट्राई करेंगे कि एक्सपैंड कैसे किया जा सकता है। जैसे देखो 7 3 6 5 7 5 3 9, दिस इज द पर्टिकुलर नंबर और आपको बोला गया है राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म और राइट इट इन एक्सपेंडेड नोटेशन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड नोटेशन बोथ आर द सेम। अब आपको ये नंबर दिया गया है और आपको बोला गया है कि इसको एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड दिस नंबर। और एक्सपेंड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, एक्सपेंड मींस इंक्रीजिंग इन द साइज और इंक्रीज्ड इन द साइज। अब आप सोचोगे कि चलो ये तो सर बहुत आसान है, मैं अभी 2 मिनट में आपको करके दिखाता हूँ। कोई बोलेगा चलो सर साइज बढ़ाना है 3 6 5 7 5 3 9, ये लो सर, आपने बोल दिया था एक्सपेंड करने के लिए, हमें एक्सपेंड कर दिया। क्या सही है? नहीं, इस प्रकार से आपको एक्सपेंड नहीं करना है। दिस इज नॉट द वे वी एक्सपेक्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है? कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको ही हमें आज पढ़ना है, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल है। वंस यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, once you understood it well, you will feel this type of question are very easy to solve and it will take very little time to solve such type of questions. अब देखते हैं हमें क्या करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, whenever such kind of question ask, तो आपको क्या करना है, इसके जो जैसे यहाँ पे 7 लिखा है, क्या लिखा है? 7 लिखा है, तो सबसे पहले आपको इस 7 को यहाँ पे लिख लेना है। मैंने क्या किया देखो, ध्यान देना है इस चीज पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं 2-3 साल से देख रहा हूं कि बच्चे इनमें गलती कर देते हैं। मतलब उनको पता है, दे नो हाउ टू एक्सपेंड द नंबर बट दे इंटरचेंज द डिजिट। आपको डिजिट को इंटरचेंज नहीं करना है। कैसे, मैं बाद में बताऊंगा बच्चे क्या करते हैं। अभी इसको पहले समझ लीजिए कि हमें क्या करना है। जब भी हमें एक्सपेंड करने के लिए बोला जाएगा, whenever they ask us to expand a number, हमें क्या करना है कि हमें जो ये वाला नंबर है जिसका प्लेस वैल्यू हाईएस्ट है, द नंबर विच प्लेस वैल्यू इज हाईएस्ट, उसको हमें चूज करना है। ये पहली बात हो गई। और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो और सिंपल से मैं बात बता देता हूं, इधर से नहीं लिखना है। जिस साइड से हम पढ़ना चालू करते हैं, हम पढ़ना इधर से चालू करते हैं ना, 7 करोड़ 36 लाख, इधर से चालू करते हैं ना पढ़ना, कि इधर से करते हैं 539 57 36 लाख, इस प्रकार से करते हैं क्या? नहीं, जिस साइड से हम रीडिंग चालू करते हैं नंबर को, उस साइड से हमें लिखना है, ठीक है? आप समझ में आ गया आपको? अब जिस साइड से रीडिंग करते हैं उस साइड से मैंने लिख दिया, उस साइड का पहला जो डिजिट है, द फर्स्ट डिजिट ऑफ दिस साइड इज 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, 7 के ऊपर नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू काउंट द डिजिट्स व्हिच केम आफ्टर दिस 7। यू कैन सिंपली काउंट द डिजिट्स। सो आफ्टर 7 देयर इज 6 3 6 5 7 5 3 9, these are the digits. So we have to count the number of digits which came after the 7. So count first, second, third, fourth, fifth, sixth and 7. So there are 7 digits which came after the 7. So I will write 0, कितने 0 में लिखना है? 7 0 लिखना है। जितने डिजिट इस नंबर के पीछे आए हैं उतने 0 मुझे लिखना है। तो मुझे अभी पता चला कि 7 के बाद देयर आर 7 डिजिट्स। सो मैं हर डिजिट के लिए एक एक 0 लगा दूंगा। ये 0 लगा दिया, ये 0, सेकंड 0, थर्ड 0, फोर्थ 0, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7।
और ये होने के बाद डोंट फॉरगेट टू पुट द प्लस साइन, आपको प्लस साइन देना नहीं भूलना है। अब देखो मैंने ये वाला जो जीरो था 3, ये फर्स्ट जीरो 3 के लिए लगाया, देन सेकंड जीरो 6 के लिए लगाया, देन फिफ्थ ये जो है थर्ड जीरो फोर्थ फिफ्थ, दिस जीरो फॉर दी 7, दिस जीरो फॉर दी 5, दिस जीरो फॉर दी 3 एंड दिस जीरो फॉर दी 9। अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया? इस प्रकार से मैंने हर डिजिट के लिए यहाँ पे जीरो लगा दिया। अब हमारा 7 खत्म हो गया, 7 इज फिनिश। नाउ हमें क्या करना है, 7 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा डिजिट आ रहा है, 3। सो वी विल राइट 3 ओवर हियर, हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब हमें सेम मैनर में जिस प्रकार से हमने 7 को डील किया था उसी प्रकार से इन द सेम वे वी हैव टू डील विद दी 3। अब हमने 3 लिख दिया, नाउ वी हैव टू count the digits which came after the 3. Now you can simply count. After 3 there is 6, 5, 7, 5, 3, 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So after 3 there are 6 digits. So I will put 6 0 after the 3. So first 0, second 0, third, fourth, fifth and 6. Got it? Now after 3, after writing this 3 and zeros, I have to place the plus sign. Don't forget to place the plus sign. After 3 there is 6, so now I will write 6 over here. Got it? And now I have to count the digits which came after the 6. So after 6 there are 1, 2, 3, 4, 5 digits. So I will put 5 0 over the 6. 1, 2, 3, 4, 5. Got it? Then I will place the plus sign here. And then after 6 there is 5. So I will write 5 over here. After 5 there is 1, 2, 3, 4. 4 digits. So I will place 4 0 over here. 1, 2, 3, 4. Then plus sign. After 5 there is 7. So I will write 7 over here. After 7 there are 1, 2, 3 digits. So I will place 1, 2, 3 0 over here. Then plus sign. Then 5. So I will write 5. After 5 there are only 1, 2 digits. So I will place only 1 and 2 zeros. Then plus sign. Then there is 3. So I will write 3 over here. Then after 3 there is only 1 digit 9. So I will place 1 0. Then there is 9. And after 9 there is no digits, so there will be no zero. Got it? आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया? देखो सिंपल सी बात थी, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। एक नंबर हमें दिया गया था, द नंबर वॉज गिवन 7,36,57,539 एंड दैट नंबर वी हैव टू एक्सपेंड, हमें एक्सपेंड करना था। फिर मैंने क्या बोला कि जब भी इस प्रकार का नंबर दिया जाता है तो हमें क्या करना है कि इस साइड से, जिस साइड से द साइड फ्रॉम विच वी स्टार्ट रीडिंग नंबर्स, हमें उस साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया। गॉट इट? फिर मैंने क्या किया, 7 के बाद कितने डिजिट्स है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर द 7, आई हैव काउंटेड दैट, मैंने उनको काउंट किया। काउंट करने के बाद मुझे पता चला कि there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digits after the 7. So I put 7 0 over here. After 7, I put 7 0 over here. Then I have written 3 over here. Then again I have counted the digits which came after the 3. So I came to know there are only 6 digits. So I put 6 0 over here. Then came the 6. I have written 6 over here. Then after 6 there are only 5 digits, so I place 5 0 over here. In such way I have written all the number, and writing 9 I got there is no zero, and here this number ends, और यहाँ पे ये नंबर एंड हो गया। इस प्रकार से मैंने इसको एक्सपेंड किया। अब आप देखो मुझे नंबर दिया गया था कितना, आप देख सकते हो इतना नंबर, और अब कितना हो गया ये देखो, यहां से यहां तक इतना बड़ा नंबर हो गया, तो एक्सपेंड हो गया ना, इजंट इट, बढ़ गया। पहले जो हमने लिखा था 7 3
इस प्रकार से एक्सपेंड नहीं, ये इस प्रकार से हमें एक्सपेंड करना है। अब आपको पता चला होगा कि राइटिंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म इट्स सो इजी, बहुत इजी है, आपको इसमें मार्क्स बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, वन अगेन। अब देखो ये इसमें जो है ये तो नंबर एक प्रकार से एक्सपेंशन हो गया इसका। यू कैन एक्सपेंड दिस नंबर बाय द अदर वे, आप अदर वे से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो हम अभी देखते हैं कि किस प्रकार से हम अलग वे से भी बाय यूजिंग वेरियस वे वी कैन एक्सपेंड द नंबर्स। सो सपोज द एग्जामिनर गिव्स द नंबर लाइक 12 lakh and they ask you to expand this number। यहाँ पे आप देखिए जो पहले हमने क्वेश्चन लिया था, पहले जो मैंने दो क्वेश्चन लिए उसमें मैंने 12 लाख को इस प्रकार से लिख के दिया था आपको, इजंट इट? अब इन्होंने इस प्रकार से लिखा हुआ दिया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज। ओके, तो इस केस में व्हाट यू हैव टू डू इन दिस केस, you have to simply write this number 12 lakh in the numerals। you have to write this number in numeral, is meant in digit, you have to write this number first। so how you will write this, you know in Indian system the first group will be of 100, tens and 1, then 1000, 10,000, then lakh। this is 1000, this is lakh, isn't it? In lakh how many? In lakh 12, so we will write 12 here, and there is nothing, so we will put simply 0 over here। so this is our new number, that is 12 lakh। now we have to expand this number, this number is given, now we have to expand this number। so I am going to tell you how by using various way we can expand this number। okay, see, the first way which you can use to expand this number is write just simply 1 and count the digits which came after the 1। so you will notice here 1 2 3 4 5 6 digits are there after the 1, so I will place 6 0 over here, 1 2 3 4 5 and 6, then plus, then there is 2, so I will write 2, and after 2 there are 5 digits, 1 2 3 4 5, so I will put 5 0 over here, 1 2 3 4 5, and there is only 0 0 0 0 0, so we don't need to expand this 0 because the value of 0 is only 0, so we don't expect to expand these zeros। हाँ, अगर 0 के बाद अगर कोई डिजिट होता तो हम इसको एक्सपेंड करते इस नंबर को, लेकिन 0 को हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये एक मेथड होगी। ओके, अब दूसरी मेथड क्या हो सकती है? अब दूसरा बोलेगा सर हमें इस प्रकार से नहीं करना है, I have an idea, so I will expand this 12 lakh by the other way। other way कैसे यूज हो सकता है? सपोज कोई ये कर सकता है कि सर मैं ना सबसे पहले 7 लाख और 5 लाख लेता हूँ, I will take 7 lakh and then 5 lakh, so 7 lakh 8 lakh 9 lakh 10 lakh 11 lakh and 12 lakh हो गया। तो इस प्रकार से भी वो एक्सपेंड कर सकते हैं। 7 lakh 1 2 3 plus 5 lakh, this is also correct। कोई ये बोल सकता है कि सर मैं और अलग तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, यस यू कैन एक्सपेंड। थर्ड मेथड, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर 5 lakh then again 5 lakh then 2 lakh, this is the one method। again somebody may tell us that I have an idea and I can expand this number by the other way, yes you can expand 12 lakh, so he may use 8 lakh plus 4 lakh, there are so many ways, you have to just imagine the number
the variation of the digits you have to imagine, and you have to keep one thing in your mind, that whenever numbers you are using to expand, the sum or the total of these number should be given number. गिवन नंबर का मतलब 12 लाख आनी चाहिए। जो भी नंबर आप एक्सपेंड कर रहे हो, देखो यहाँ पे मैंने 10 लाख और 2 लाख किया, so the total of 10 lakh and 2 lakh is 12 lakh. Here you can see the total of 7 lakh and the 5 lakh is 12 lakh. Here you can see the total of this 5 lakh, 5 lakh, 10 lakh and 10 lakh and 2 lakh, 12 lakh. Here you can see here is 8 lakh and 4 lakh. 8 lakh and 4 lakh becomes 12 lakh. So one thing you have to keep in your mind, that whenever number, whichever number you are using to expand the number, the total or the sum of this number should be the number given in questions. जो क्वेश्चन में आपको एक्सपेंड करने के लिए दिया है वही उसकी टोटल आनी चाहिए। तो मैं अभी आशा करता हूं कि आपको ये वाला जो टॉपिक है एक्सपेंडेड नंबर, ये आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, सो काइंडली ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक आउट योर मैथमेटिक्स कॉपी एंड राइट टुडेज डेट, एंड देयर आर सम क्वेश्चंस आई एम गिविंग फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, the question will write it in expanded form. Write it in a expanded form. Question number 1. So one very simple, 10 lakh. अब यहाँ पे 10 लाख दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिजिट्स में लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट दिस 10 लाख इनटू न्यूमेरल्स एंड देन यू हैव टू एक्सपेंड दिस नंबर। देन द सेकेंड नंबर इज 630059956। द थर्ड नंबर इज 1 crore, 1 crore. The fourth number is 12 5 6 9 6 5 5 5, and the fifth question is 1 lakh. These are the 5 question we have to solve in your mathematics copy. So I hope you will be able to solve these questions. अब हमने इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर जो नेक्स्ट हमारा वीडियो बनेगा, इन द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट the short form of the number. Okay, thank you so much.